Hello, friends. Welcome to English Minds, your own platform. I hope you are doing well. Today, we will discussing on La Belle Dame Sans Mercy by John Keats, a tale of beauty, betrayal, and broken illusions. Get ready to explore deep symbolism, hidden meaning, and timeless relevance. All decoded for your exams and beyond. So, like, share, and stay curious with your own platform, English Minds. Let's begin without delay. John Keats' narrative ballad La Belle Dame Sans Mercy presents the chilling tale of a solitary night be visited by a mysterious eternal woman in a dreamlike, decaying landscape. The poem begins with an unarmed speaker encountering night looking pale, weary, thaka hua, and melancholic, alone and loitering in a lifeless setting where the sea has withered from the lake and no bird sings. An enchantress appears. The knight recounts meeting a beautiful woman, beautiful wide-eyed lady, possibly a fairy child, means परियों की सहजादी, बेटी. He adorns her and floral garlands, and she returns his affection, feeding him sweet roots and singing to him in an unknown tongue. मीन्स ऐसे लैंग्वेज मीन्स जो एकदम मेलोडी कहते हैं ना, मंत्र मुग्ध कर दिया. द एफन ग्रोटो ही इज लेड टू हर एफन ग्रोट वेयर सी वीप्स, मतलब रोने लगी, एंड ही किसेस हर क्लोज्ड आइज, और उसने क्या किया, उसकी बंद आंखों पर किस किया. इंटरेस्ट he falls into a deep slumber. A dread turns nightmare. A dream means जो सपना था, उसका ख्वाब था, वो nightmare means बुरे सिचुएशन में, बैड हॉरिबल सिचुएशन में आ गया वो. In his dream, the knight sees pale kings and princes and warriors, former victims of the same lady, warning him that La Belle Dame Sans Mercy hath thee in thrall. Their hollow faces and starved expressions reflect the price of enchantment. The aftermath, awakening alone on a cold hillside, abandoned and broken, the knight is left in a state of emotional paralysis, doomed to wander aimlessly, a victim of love's fatal illusion. Themes: deceptive beauty means जो दिखता कुछ और है और होता कुछ और है. इमोशनल इंट्रैपमेंट मीन्स इमोशनल जालसाजी, जैसे लाइक हनी ट्रैप. रोमांटिक इल्यूजन वर्सेस रियलिटी, जैसे हम अपनी मेमोरी में फोटोशॉप मेमोरी बनाते हैं कि सब अच्छा चल रहा है और एक्चुअल में वैसा कुछ होता नहीं है. मोरालिटी एंड मेलंकली, मिडिवलिज्म एंड गोथिक एटमॉस्फियर. Why it endures? Keats
masterfully blends medieval imagery with romantic melancholy, leaving readers haunted by the question, was sea is real or a deadly dream? La Belle Dame sans Mercy. John Keats' poem La Belle Dame sans Mercy. Complete text. Let's begin. Oh, what can ail thee, knight at arms? Alone and palely loitering. The sage has withered from the lake and no bird sings. हे योद्धा, तुझे क्या तकलीफ है? अकेला और इस तरह से तो क्यों भटक रहा है? The sage had withered from the lake. झील के घास सूख गई हैं and no bird sings. और यहाँ कोई पक्षी अब गाता नहीं है. The poem opens with an unnamed speaker addressing a knight, a figure associated with chivalry and heroism. The term ails suggests something is wrong, physically, emotionally, or spiritually. The phrase knight at arms means establishes the medieval romantic setting, evoking a sense of valor now diminished. Alone and palely loitering. The knight is described as solitary and pale, suggesting weakness or illness. Loitering implies means जो wandering, घूम रहा है, implies aimless wandering, contrasting the purposeful action expected of a knight. The tone is melancholic, setting and a somber mood. The sage has withered from the lake means झील के किनारे सूखी घास को सेज कहते हैं एंड ये एक बंजर उजाड़ परिदृश्य को दिखाता है जो क्षय या जीवन शक्ति की हानि का प्रतीक है. वह योद्धा अपनी स्थिति को प्रतिबिंबित करता है. एंड नो बर्ड सिंग्स, पक्षियों के और कोई पक्षी नहीं गाता. पक्षियों के गीत की अनुपस्थिति एक मृत भयावह वातावरण को और गहरा करती है. पक्षी आमतौर पर खुशी या जीवन के प्रतीक होते हैं, इसलिए उनकी चुप्पी मृत्यु का उजाड़पन का संकेत देती है. एंड नाइट एट आर्म्स is a alliteration and palely loitering also alliteration. Imagery withered seas and silent bird में imagery no bird sings means silent bird में इमेजरी, जैसे साइलेंट वर्ड बोला तो हमारे अंदर इमेजिन कर लेते हैं हम ना. एंड अ क्वेश्चनिंग टोन मीन्स हम क्वेश्चन भी तो कर रहे हैं. एस्टेब्लिश द नाइट प्लाइट एंड द डेजोलेट सिटिंग मीन्स निर्जन वन में. ओ वी कैन एल दी नाइट एट आर्म्स सो हैगार्ड एंड सो वो बिगन. द स्क्वेरल गैनरी इज फुल and the harvest is done. हे योद्धा, तुझे क्या तकलीफ है?
ओ सो हैगर्ड एंड सो वो बिकॉन मीन्स तू इतना थका क्यों है और दुखी क्यों दिख रहा है। द स्क्वेरल मीन्स ये जो गिलहरी है ना, इसने अपने अनाज भंडार को भर लिया है। और एंड द हार्वेस्ट इज डन। डन मीन्स और जो फसलें हैं वो कट चुकी हैं। मीन्स ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स। द रिपीटेशन ऑफ द ओपनिंग लाइन फ्रॉम द फर्स्ट स्टांजा reinforces the speaker concern and curiosity about the night's condition, emphasizing continuity. मीन्स पहली पंक्ति का पुनरावृत्ति की जो रिपीटेशन है, ये वक्ता जो स्पीकर है उसकी चिंता और जिज्ञासा को बल देती है, जो योद्धा की स्थिति के बारे में जानना चाहता है। एंड सो हैगर्ड एंड सो वो बिकॉन हैगर्ड सजेस्ट एग्जॉस्टन मीन्स जैसे थका हुआ, और गॉटनेस मीन्स विदाउट एनी एनर्जी। वाइल वो बिकॉन कन्वे डीप सॉरो। जो देखो ये सॉरो और डिस्पेयर है ना, निराशा, हताशा, डीप सॉरो, दीज डिपेंड द नाइट्स ब्यूटीफुल स्टेट, hinting as a profound emotional or supernatural affliction. इतना थका और दुखी क्यों है। थका मीन्स जो हैगर्ड है ना, ये शारीरिक और मानसिक थकावट को दर्शाता है, और जबकि जो वो बिगान है ना, वो मानसिक जो मेंटेलिटी है ना, उसके गहरे दुख और निराशा को व्यक्त करता है। वह योद्धा की गंभीर भावनात्मक या जो अलौकिक पीड़ा है ना उसकी तरफ ये इशारा करता है। नेक्स्ट, and the harvest done. The completed harvest further establish the late season, symbolizing the end of a cycle. It contrasts the night's barrenness with the natural world fulfillment. Means और फसल कट चुकी है एंड द हार्वेस्ट इज डन। फसल की कटाई का पूरा होना पतझड़ के मौसम को पुष्ट करता है, मीन्स अफर्म करता है, जो एक चक्र के अंत का प्रतीक होता है। यह योद्धा की बंजर स्थिति के साथ प्रकृति की पूर्णता का विरोधाभास दिखाया जाता है। एंड रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट लाइन, व्हाट ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, contrast natural abundance versus night despair. And vivid adjectives, मतलब ये जो हैगर्ड है ना, ये एडजेक्टिव है, एंड वो बिकन है, ये भी एडजेक्टिव है। enhance the emotional tone मीन्स क्या करते हैं ये, इमोशनल टोन को दर्शाते हैं। फसल की कटाई का पूरा होना पतझड़ के मौसम को दर्शाता है। And next stanza, I see a lily on thy brow, with anguish moist and fever dew, and on thy cheeks a fading rose, fast withered too. I see a lily on thy brow. The speaker observes a lily on the knight's forehead, a metaphor for paleness, often associated with purity or death. It suggests the knight ghostly appearance. Means मैं तेरे माथे पर एक लिली देखता हूँ। I see a lily on thy brow. वक्ता योद्धा के माथे पर लिली देखता है, जो पीलेपन का प्रतीक है, जो अक्सर शुद्धता या मृत्यु से जुड़ा हुआ होता है। यह योद्धा की भूतिया उपस्थिति को दर्शाता है, मीन्स भूतिया, निर्जन, बैरन स्टेट को दिखाता है। एंड विथ एंग्विश मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू, द नाइट्स ब्रो इज
wet with anguish and fever dew. Torment, implying emotional torment and physical illness. Fever dew suggests a calming sweet, reinforcing his weakened state. पीड़ा से, नम और बुखार की ओस से. योद्धा का माथा पीड़ा, पेट और बुखार की ओस से नम है, जो भावनात्मक कष्ट और शारीरिक बीमारी का संकेत देता है. बुखार की ओस पसीने की नमी को दर्शाता है, जो उसकी कमजोर स्थिति की ओर और बल देता है. एंड ऑन द चिक्स अ फेडिंग रोज मीन्स उसके चिक्स कैसे हैं? फेडिंग रोज, और तेरे गालों पर एक मुरझाता गुलाब. गालों पर मुरझाता गुलाब जीवन और प्रेम का प्रतीक है, जो अब खो रहा है. वह योद्धा की खोई जीवन शक्ति या आध्यात्मिक रिक्तता, जो खालीपन है, उसको दर्शाता है. And on the cheeks of fading rose, the fading rose on his cheeks symbolize lost vitality or beauty. Fading rose. As roses represent life and love, the fading suggests the night is near death or spiritually drained. Fast withered too means the rapid withering of the rose emphasizes the night's swift decline, tying his condition to the decaying natural imagery of the earlier stanza. तेजी से सूख रहा है. फास्ट विदरन टू, गुलाब का तेजी से मुरझाना योद्धा की तेजी से बिगड़ती स्थिति को दर्शाता है, जो पहले के बंजर प्राकृतिक चित्रण से जुड़ा हुआ है. लिली एंड रोज में क्या है? मेटाफर. I see a lily on thy brow. And imagery, fever dew and moist, fading rose and fever dew में imagery, and personification, withering rose. Create a vivid picture of decay and despair. I met a lady in the meadows, full beautiful, a fairy child. Her hair was long, her foot was light, and her eyes were white. मैं घास के मैदान में एक स्त्री से मिला. I met a lady in the meadows, full beautiful, a fairy child. अत्यंत सुंदर, एक परियों की संतान. Her hair is long means उसके बाल लंबे थे. एंड हर फुट वॉज लाइट, और उसका लाइट फुट मीन्स उसके जो कदम थे ना हल्के थे. हल्के मीन्स विदाउट एनी नॉइज. एंड हर आईज वर वाइट, और उसकी आंखें जंगली थी मीन्स बहुत बड़ी. आई मेट अ लेडी इन द मिडास. द नाइट बिगिंस हिज नैरेटिव डिस्क्राइबिंग हिज इनकाउंटर विद अ लेडी इन द मिडोज. This shifts the poem into his perspective, introducing the central figure. मैं घास के मैदानों में एक स्त्री से मिला. योद्धा अपनी कहानी शुरू करता है, जिसमें वह एक स्त्री से घास के मैदान में मिलने की बात बताता है. यह कविता को उसकी नज़र से देखने की शुरुआत करता है. Her hair was long and her foot was light. Her long hair and light step emphasizing
her eternal delicate nature enhancing her fairy-like allure. अत्यंत सुंदर एक परियों की संतान स्त्री को अत्यंत सुंदर और अलौकिक मीन्स परियों का संतान बताया गया है। ये संकेत देता है कि वह मानव नहीं बल्कि एक रहस्यमयी या जादुई प्राणी है। जैसे तू कौन कहाँ से आई है और ये हुस्न कहाँ से लाई है, ऐसा कि परी है या अप्सरा तू। एंड her hair was long, her foot was light. Her long hair and light step emphasize her eternal delicate nature, enhancing her fairy-like allure, and her eyes were wide. Her wide eyes suggest both enchantment and danger, मतलब मीन्स वो मायावी भी हैं और खतरनाक भी, hinting at her unpredictable possibly menacing nature means। और उसकी आंखें जंगली थी, उसकी जंगली आंखें आकर्षण मीन्स अट्रैक्ट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एंड सेंटर ऑफ डेंजर जोन बोथ दोनों का संकेत देती है, जो उसकी अप्रत्याशित और संभवतः खतरनाक प्रकृति को दर्शाती है। इमेजरी लॉन्ग हेयर and supernatural illusion, fairy child, supernatural illusion। And shift to first person narrative, deepen the poem mysterious tone। Next, I made a garland for her head and bracelet too and fragrant June। She looked at me, she did love। She looked at me as she did love and made a sweet moan। मैंने उसके हेड के लिए मीन्स जैसे टियारा होता है ना, माला बनाई और कंगन भी, एंड फ्रेग्रेंट जोन और सुगंधित कमर बंद भी। She looked at me as she did love। और उसने मुझे ऐसे देखा जैसे वह प्यार करती हो, एंड मेड अ स्वीट मोन और उसने मधुर सिसकियां भी भरी। I made a garland for her head। The knight crafts a garland, a traditional gesture of affection or devotion, symbolizing his adoration for the lady। means मैंने उसके सिर के लिए माला बनाई, means मैंने उसके लिए टियारा बनाई। योद्धा उसके लिए माला बनाता है जो प्रेम या भक्ति का पारंपरिक प्रतीक है। भाई जिससे हमारा लगाव होता है, जिससे हम अफेक्शन महसूस करते हैं, हम उसके लिए कुछ करना चाहते हैं जो हमसे करते बनता है, तो उसको वही दिखा, तो उन्होंने वही किया जो उसके प्रति क्या हम उसकी श्रद्धा को दर्शाता है। एंड ब्रेसलेट टू एंड फ्रेगमेंट जोन और कंगन भी और सुगंधित कमरबंद। He also makes bracelet and a fragrant zone, a girdle or belt, further emphasizing his efforts to adorn her। The fragrant zone suggests natural beauty and sensuality। वह कंगन और एक सुगंधित कमरबंद भी बनाता है जो उसकी सुंदरता को और सजाने का प्रयास करता है। सुगंधित कमरबंद प्राकृतिक सौंदर्य और सेक्सुअलिटी का प्रतीक है। She looked at me as she did love। Her gaze, not male only gaze, female also gaze। Her gaze seems to convey love, but the phrase as she did love introduces ambiguity। Her affection may be genuine or deceptive।
मीन्स वो प्यार सच्चा भी हो सकता है और छलावा भी। उसने मुझे ऐसे देखा कि जैसे वो प्यार करती हो। उसकी नज़र प्रेम को व्यक्त करती प्रतीत होती है, लेकिन जैसे वो प्यार करती हो। एज सी डिड लव, जैसे क्या होता है, प्यार करती है तो करती है जैसे लगा। मीन्स एम्बिग्विटी, उसका प्रेम सच्चा हो सकता है या छलावा भी हो सकता है। मीन्स प्रायोजित। एंड मेड अ स्वीट मोन, हर स्वीट मोन is sensual yet ambiguous, possibly indicating pleasure, sorrow or enchantment, adding to her mysterious allure. और उसकी मधुर सिसकियां भरी, उसने मधुर सिसकियां भरी, उसकी मधुर सिसकियां सेक्सुअल लेकिन एम्बिग्विटी, स्पष्ट अस्पष्ट है, जो सुख दुख या जादू का भी संकेत दे सकती हैं, जिससे उसका रहस्यमय आकर्षण बढ़ता है। गार्लैंड एंड ब्रेसलेट indicates symbolism, ambiguity. And as she did love indicate ambiguity, not clear she love or not love. And sweet moan, auditory imagery, enhance the romantic and mysterious tone. Next, I set her on my pacing steed, and nothing else saw all day long. For sidelong would she bend and sing a fairy song. और मैंने उसे घोड़े पर बिठाया और सारा दिन कुछ और देखा नहीं। एंड नथिंग एल्स saw all day long. For sidelong would she bend and sing, और क्योंकि वो तिरछी होकर गाती थी, मीन्स जैसे वो मेरी तरफ देख रही हो। एंड सिंग अ फेरी सॉन्ग, एक परियों का गीत। I set her on my pacing steed, means the knight places her on his horse, a chivalric act that signifies his devotion and surrender to her. The pacing state suggests movement and progression in their encounter. मैंने उसे अपने घोड़े पर बिठाया, योद्धा उसे अपने घोड़े पर बिठाता है, जो कि एक सूरवीर होने का कार्य है और उसके प्रति उसकी भक्ति और समर्पण को दर्शाता है। घोड़ा गति और उसकी मुलाकात की प्रगति का प्रतीक है। एंड नथिंग एल्स सा ऑल डे लॉन्ग, और ही इज कंप्लीटली कैप्टिवेटेड, और सारा दिन उसने कुछ नहीं देखा। मीन्स वह पूरी तरह से मंत्र मुग्ध है। सीइंग ओनली हर, वो केवल उसे ही देखता है। इंडिकेटिंग ऑब्सेशन और enchantment that blinds him to the world, मीन्स जो उसकी सनक का या जादू को दर्शाता है, जो उसे दुनिया से अंधा कर देता है। एंड for sidelong would she bend and sing, क्योंकि वह तिरछी होकर गाती थी। Her sidelong glance is seductive and coy, while her singing add her otherworldly charm. उसकी तिरछी नज़र आकर्षक और चुलबुली थी है, जबकि उसका जो गाने का ढंग है ना, जो गा रही है वो, उसकी उसमें एक अलौकिकता है जो आकर्षण को बढ़ाता है। A fairy song means the fairy song reinforces her supernatural nature, suggesting a spell-binding quality that further enthralls the night. Means एक परियों का गीत, परियों का जो गीत है उसकी अलौकिक प्रकृति को और पुष्ट करता है।
जो एक मंत्र मुग्ध करने वाली शक्ति का संकेत देता है, जो योद्धा को और बांध लेता है। Sidelong glance and fairy song is a imagery, इसमें लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है, इमेजरी एंड सिंबोलिज्म। पेसिंग स्टेट इज अ सिंबोलिज्म। एंड द थीम ऑफ एन्चैंटमेंट डिपेंड नरेटिव। नेक्स्ट, शी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेली स्वीट एंड हनी वाइट एंड मन्ना ड्यू and sure in language strange she said, I love thee true। उसने मुझे क्या दी? स्वादिष्ट जड़ें दी और जंगली शहद और मन्ना ओस। मन्ना ड्यू मीन्स स्वर्गिक जो भोजन, लाइक प्रसादम। और निश्चित रूप से ये अजीब भाषा में उसने कहा। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज शी सेड, आई लव दी ट्रू। मैं तुझसे सच्चा प्यार करती हूँ। शी फाउंड मी रूट एंड रेली स्वीट। द लेडी प्रोवाइड्स द नाइट विद रूट्स ऑफ रेली स्वीट। Natural and delightful food, emphasizing her connection to the earth and her nurturing yet possibly deceptive role। मीन्स उसने मुझे स्वादिष्ट जड़ें दी। स्त्री योद्धा को स्वादिष्ट जड़ें देती हैं, जो प्राकृतिक और आनंददायक भोजन होता है, जो उसके प्रकृति से जुड़ाव और उसकी पोषणकारी लेकिन संभवतः छलपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। एंड हनी वाइट एंड मन्ना ड्यू। हनी वाइट एंड मन्ना ड्यू। Honey white and manna dew, a biblical reference to divine sustenance, enhance the magical, almost divine quality of her offerings, deepening the sense of enchantment। और जंगली शहद एंड मन्ना ड्यू। जंगली शहद और मन्ना ड्यू बाइबल में ईश्वरीय भोजन का उल्लेख है। उससे उसके उपहारों की जादुई लगभग दैवीय गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, जिससे जादू का आभास होता है। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंथ शी सेड, हर डिक्लेरेशन इन अ लैंग्वेज स्ट्रेंज सजेस्ट अ नॉन ह्यूमन मीन्स नॉन बायोलॉजिकल, पॉसिबली सुपर नेचुरल ओरिजिन, जो कभी भी कहीं भी प्रकट हो जाता है। एडिंग टू हर मिस्टीक एंड एम्बिग्विटी। और निश्चित रूप से अजीब भाषा में उसने कहा। उसका जो अजीब भाषा है, स्ट्रेंज लैंग्वेज में बोलना, उसके नॉन बायोलॉजिकल पॉसिबली अलौकिक मूल को दर्शाता है, जो उसके रहस्य को क्या करता है और बढ़ाता है। आई लव दी ट्रू। हर क्लेम ऑफ ट्रू लव इज सेडक्टिव बट क्वेश्चनेबल। गिवन द पोएम्स टाइटल सैंस मर्सी means without mercy, बिना दया के स्त्री। It hints at manipulation और enchantment, means उसका मैं तुझसे सच्चा प्यार करती हूँ। उसका सच्चे प्यार का दावा आकर्षक तो है, लेकिन कविता के शीर्षक जो बिना दया की सुंदर स्त्री को देखते हुए क्वेश्चनेबल है, मीन्स क्वेश्चन के घेरे में है। यह हेर फेर का या जादू की ओर इशारा करता है। मन्ना ड्यू एल्यूजन। एम्बिग्विटी स्ट्रेंज लैंग्वेज नॉट क्लियर। एंड सेंसरी इमेजरी स्वीट रूट्स वाइट हनी। and white honey।
creative a seductive yet ominous tone. Next, she took me to her effin grot, and there she wept and sighed full sore. And the I shut her wide eyes with kisses for, means उसने मुझे अपनी परियों की गुफा में ले गई. She took me and to her effin grot, means a fairy like, effin grot, a fairy like cave. A magical place that reinforced her supernatural nature. Means उसने मुझे अपनी परियों की गुफा में ले गई. स्त्री योद्धा को परियों की गुफा में ले जाती है. स्त्री जो है वो योद्धा को परियों की गुफा में ले जाती है, जो एक जादुई एकांत स्थान और उसकी अलौकिक प्रकृति को पुष्ट करता है, मीन्स प्रूव करता है. एंड देयर शी wept and sighed full sore. Her weeping and sighing suggest intense emotion, possibly sorrow, regret, or a deceptive act to further enchant the night. Means और वहाँ वह बहुत रोई और आह भरी. उसका रोना और उसकी आहें भरना गहन भावनाओं को दर्शाता है, संभवतः दुख, पछतावा या योद्धा को और मोहित करने का एक छलपूर्ण कार्य है. भाई साहब, ये तो एकदम एम्बिग्विटी ही चल रही है अभी तक. एंड देयर आई सेट हर वाइड आईज. द नाइट kisses her wide eyes, shut, emphasizing their intensely and his desire to connect with her. The repetition of wide underscores her untamed nature. और वहाँ मैंने उसकी जंगली आँखें. And there I set her wide eyes. योद्धा उसकी जंगली आँखों को किस करके बंद कर देता है. With kisses 4 means 4. जो उसकी तीव्रता और उसके प्रति उसकी इच्छा को दर्शाता है. जंगली की जो वाइड रिपीटेशन है वो पुनरावृत्ति है, उसकी जो बेकाबू प्रकृति की को इंडिकेट करती है. विद किसेज फॉर दिस स्पेसिफिक नंबर कि मैंने उसको 4 बार किस किया. 4 एड्स अ रिचुअलिस्टिक और मैजिकल क्वालिटी. ऐसे नहीं, यूं ही नहीं 4 नंबर है, मीन्स उसका टैबू है. पॉसिबली इंडिकेटिंग अ मोमेंट ऑफ कंप्लीट सरेंडर टू हर स्पेल. मीन्स 4 किसेज, 4 की विशिष्ट संख्या एक अनुष्ठान लाइक इन्वोकेशन या बिबचिंग मीन्स मैजिकल गुण को जोड़ती है, जो पॉसिबल है कि उसके जादू के प्रति पूर्ण समर्पण या क्षण को दर्शाती है. एफिन क्रोट इंडिकेटिंग इमेजरी, जैसे हम अ फेरी लाइक केव इमेजिन किया. रिपीटेशन वाइड आइज, इसमें सबको पता है कि लिटरेरी डिवाइस रिपीटेशन ही हो सकता है क्या है. एंड सिंबोलिज्म किसेस 4 मीन्स ये जो 4 का कंप्लीट होने का जो पूर्णता का सिंबल है. ये क्रिएट अ क्लाइमेटिक एन्चेंटेड मोमेंट. और नेक्स्ट, एंड देयर शी लल्ड मी asleep, and there I dreamed, oh betide,
The latest dream I ever dreamed on the cold hillside. और उसने क्या किया? वहाँ मुझे सुला दिया. And there she lulled me asleep. The lady lulls the night to sleep, suggesting the hypnotic or magical influence depending his enchantment. और उसने मुझे सुला दिया. स्त्री वॉरियर को सुला देती है, मीन्स योद्धा को, जो एक सम्मोहन मीन्स हिप्नोटिज्म या जादुई प्रभाव को दर्शाता है, जिससे उसका मोह और गहरा हो जाता है. And there I dreamed bedtime. Miss the night dream is introduced with a cry of distress, woe betide, indicating that the dream is ominous and marked a turning point. और मैंने सपना देखा. ओह वो मीन्स कितना विपत्ति आया है. योद्धा का सपना विपत्ति के लिए उद्गार के साथ शुरू हुआ, जो संकेत देता है कि सपना अशुभ है. मीन्स कितना सैडफुल सपना उसने देखा. एंड देयर आई ड्रीम्ड. और एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिन्हित करता है. मीन्स अब यहाँ से एक यू टर्न होने वाला है. द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड ऑन द कोल्ड हिल साइड. कोल्ड हिल साइड. The cold hillside introduced a stark, desolate setting, contrasting the warmth of the growth and signaling the night abandonment. और आखिरी सपना यह संकेत देता है कि यह एक महत्वपूर्ण संभवतः अंतिम सपना था, जो योद्धा में गहरे या स्थायी बदलाव का संकेत देता है. ठंडी पहाड़ी पर मीन्स ऑन द कोल्ड हिल साइड. ठंडी पहाड़ी एक कठोर उजाड़ स्थान को प्रस्तुत करती है, जो गुफा की गर्मी के विपरीत है और योद्धा के परित्याग को दर्शाती है. वो बिटाइट example of exclamation and contrast growth versus cold hill means cold hill site. And foreshadowing create a sense of impending doom. Next, I saw pale kings and princes too. Pale warriors, death pale, were they all. They cried, La belle dame sans mercy, the hath in thrall. Means मैंने जो पीले पड़े राजाओं थे, मीन्स बहुत कमज़ोर असहाय, मैंने बहुत कमज़ोर और असहाय राजाओं को देखा. पेल वॉरियर्स, डेथ पेल, वर दे आल मीन्स योद्धा सब पीले पड़े हैं, जैसे मृत्यु जैसे पीले पड़े हैं. दे क्राइड ला बेल डैम सेंस मर्सी, और वे चिल्लाए, वो जो विदाउट मर्सी की जो लेडी है ना, दी हैड इन थ्रॉल, उसने क्या किया है, तुम्हें अपने वश में कर लिया है. आई सा देयर स्टार्व्ड लिप्ड इन द ग्लूम.
and horrid warning grabbed White, and I awoke and found me here on the cold hill side. और मैंने अपने आप को हिल के साइड में पाया. In his dream, the knight sees all the way. So, that's it. ये एक तरफा या जहरीले प्रेम संबंध कवि का जो सूरवीर उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो आज भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं. एंड दिस इज वाई आई sojourn here alone and pale, loitering, though the sea is withered from the lake and no bird sings. And this is why I sojourn here. The knight explains the reason for his current state. He is sojourning in this place because of emotional and physical impact of the encounter with the mysterious lady, which called La Belle Dame Sans Mercy. Means यही कारण है कि मैं ठहरा हुआ हूँ. नायक बता रहा है कि वह इस सुनसान जगह पर क्यों भटक रहा है. मीन्स एलोन एंड पेली लॉइटरिंग. उसका कारण यह वह रहस्यमयी महिला है जिसने उसे मोह लिया. एंड एलोन एंड पेली लॉइटरिंग, ही इज वॉन्डरिंग एमलेसली. मीन्स विदाउट एनी एम. कंप्लीटली अलोन मतलब पूर्णतः अलोन, अकेला. एंड हिज फेस इज पेल, और उसके जो फेस है वो कमजोरी के कारण पीले पड़ गए हैं. शोइंग साइंस और सिकनेस, जो दिखा रहे हैं बीमारी, हार्ट ब्रेक एंड चिंता, थकान, एग्जॉस्टेशन. दिस लाइन रिफ्लेक्ट हिज इमोशनल डिसोल्यूशन. मीन्स वह अकेला है और उसके चेहरे की रंगत उड़ गई है. वह उदास और थका हुआ है. लॉइटरिंग का अर्थ है बिना उद्देश्य के कहीं भटकना. मीन्स वॉन्डरिंग विदाउट एम. मीन्स वॉन्डरिंग एमलेसली. यह उसके अंदरूनी पीड़ा और अकेलेपन को दर्शाता है. दो द सेज इज विदर्ड फ्रॉम द लेक. हालांकि द नेचुरल सराउंडिंग्स रिफ्लेक्ट हिज इमोशनल स्टेट. द सेज अ ग्रास लाइक प्लांट. What is says a grass-like plant? It withers, the suggests decay, barrenness, or the end of vitality, likely symbolizing lost love or hope. And no bird sings means a powerful symbol of lifelessness and silence. Bird singing usually symbolize joy. जब हम अपनी ज़िंदगी में खुश होते हैं, joy, लाइफ में सब हम जिंदा दिली के साथ जीते हैं. जब हमारी ज़िंदगी में उत्साह और उमंग होता है, वो लाल पीला नीला नहीं, रियल वाला, वाइब्रेंट. द फैक्ट इज नो बर्ड आर सिंगिंग एम्फेसाइज द डिसोलेशन. मीन्स हमारा कैसा निर्जन, निराश एंड अननेचुरल स्टिलनेस अराउंड हिम. दिस फाइनल लाइन इज रिपीटेड फ्रॉम द बिगिनिंग, creating a cyclical structure and reinforcing his hopeless state. Means ये उसके कैसे स्थिति को दर्शाता है, एकदम से निराश. Though the says of withered from the lake, झील के किनारे की घास जो कि अब मुरझा चुकी है, यह प्रकृति के मुरझाने का चित्र है जो उसकी आंतरिक स्थिति का प्रतीक है. जैसे उसके जीवन से भी ताजगी और प्रेम क्या हो गया है, समाप्त हो गया है. एंड नो बर्ड सिंग्स, सबसे मार्मिक जो पंक्ति है वो ये कि कोई पक्षी नहीं गा रहा है. अ पावरफुल सिंबल ऑफ लाइफलेसनेस एंड साइलेंस. यह मृत
वातावरण खामोशी और उदासी का प्रतीक है। यह दिखाता है कि जब जीवन में कोई उत्साह और संगीत नहीं बचा है। एंड लव एंड abandonment, nature mirroring inner emotions, पैथेटिक फैलेसी, इल्यूजन मीन्स हमें जो भ्रम होता है, वर्सेस रियलिटी, gothic loneliness and decay. This stanza uses simple yet symbolic language to express the night heartbreak and abandon. The setting withered says no words, symbolizing a lifeless emotional state, turning nature into a mirror of sorrow. तो आज के लिए बस इतना ही। कल इस पर हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे और इसके विनर होंगे जो इस टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ा होगा। सो दैट्स इट। तो फ्रेंड्स, ये थी जॉन कीट्स की मिस्टीरियस कविता ला बेल डैम सेंस मर्सी। तो कल हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे और जितने भी सारे वर्ड्स हैं जो कि वोकैबुलरी का मेन पोर्शन है उस पे हम प्रैक्टिस करेंगे और पूरे सिलेबस को कम्प्रिहेंसिवली आराम से कवर करेंगे, जो कि आपके प्री और मेंस के लिए बहुत उपयोगी होगा और है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने ये इस जो कविता में कवि प्रतीक उसकी भावनाएं हैं जो और उसके छिपे हुए अर्थों को गहराई से समझा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय ज़रूर बताएं। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ज़रूरतमंद के साथ और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जो आने वाले हर अपडेट आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग with your own platforms, English Minds. Until then, bye bye. Thanks for watching.